Dear students, today we are going to study the chapter The End of the Bipolarity. Yesterday in the first chapter we studied about the Cold War era. Now how the two big groups, USSR and USA, there the whole world that were in two groups now disintegrated, now broke down. So we are today going to study the end of bipolarity, the end of two group system that failed as well as they broke down completely, and the world became in single polar system. Now today we are going to study the end of bipolarity. First we study about the Soviet system. Have you heard about the USSR? USSR, the Union of Soviet Socialist Republic. This was the group in which near about 15 countries were assimilated in USSR, Union Soviet Socialist Russia. It was the group of 15 countries. Their idealism was the communism. They were ruling over this system. That was the communism. This communism, as well as the, we can say, the socialist and socialism and egalitarian system, like the farming. The communism that was based on the socialism and the egalitarian system. Now what happened? In 1991, it completely disintegrated, and the end of bipolarity. USSR, the group of 15 countries, the bloc of the 15 countries divided. We can say the 15 countries separated from the USSR. Even Russia became another new country. In the beginning, it was, we have studied in 1917. In 1917, this became USSR. Against the King Tsar, the people reacted, and the kingship was removed, and new ideology came into force as in power. That was the communism. In 1917, राजा का सिस्टम खत्म हो गया और 1917 में राजा का राज हटाकर जारशाही सिस्टम समाप्त करके रसिया के अंदर एक नया सिस्टम आया जिसका नाम था कम्युनिज्म. ये कम्युनिज्म इक्वलिटी बेस्ड था. इट वाज ऑन बेस्ड ऑन इक्वलिटी सिस्टम कि ऑल द पीपल मस्ट बी गिवन द इक्वल थिंग्स, लाइक द मनी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इन इक्वल, एंड there was the authorityships. What is this? It was that the money, the persons who were ruling, the party that was ruling in Russia, they were having the command, they were handling all the things in their hands, and they used to distribute all the money to the all citizens of the USSR. On that time, this group of 15 countries became USSR after 1917. How it came into, first we study how the Russia became USSR after 1917. So what was the reason? I tell you. First thing, that Russia played dominant role to set free some countries that were East European countries.
East European countries that were East European countries that were freed, they were given liberty, freedom, and they adopted the ideology of communism, and they came into USSR group. The 14 countries, the East European countries came into the USSR group, and it became a big group. How it happened? After Second World War, that was ended in 1945, when USA bombarded in Hiroshima and Nagasaki of Japan. There were 3 countries: Japan, Germany, and Italy. In Japan there was the militarism, in Germany there was Nazism, and Italy there was fascism. Those countries who were under the fascism, those countries who were under the fascism in Italy, and they were set free by USSR, by Russia, and because of these East countries that were having the fascism ideology, they removed their fascism theory and joined the group of USSR and adopted a communism ideology. So first, how USSR became after 1947, 1917 के बाद USSR एक बड़ा ग्रुप बना. कैसे बना? फासिज्म विचारधारा के खिलाफ लोग हो गए, कई देश हो गए, और वो देश को रसिया ने आज़ाद करवाया, यूँ कह सकते हैं. और ये ईस्ट कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इसलिए ये कंट्रीज़ को रसिया के द्वारा आज़ाद करवाया गया था. फासिज्म के विरोध गए थे ये लोग, इसलिए क्या हुआ, ये इस USSR में शामिल हो गए. इस प्रकार हम कह सकते हैं पहले रसिया कैसे बना, फिर हम उसका टुकड़ा बताएंगे, कैसे उसका विखंडन हुआ, कैसे वो डिसइंटीग्रेटेड हुआ, और इस प्रकार द एंड ऑफ बाइपोलरिटी हो गया कि एक ग्रुप जो था वो USA था और दूसरा USSR था. ये कैसे USSR, दुनिया जो 2 खंडों में बंटी हुई थी, पूरी दुनिया के देश 2 भागों में बंटे हुए थे, 2 ब्लॉक बंटे हुए थे. कुछ देश USA के अंडर में थे, कुछ देश USSR के अंडर में थे. अब कैसे वो USSR कैसे टूट रहा है, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहले USSR कैसे फॉर्मेशन में हुआ, हाउ USSR बिकेम इन फॉर्मेशन, हाउ इट बिकेम USSR, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, यूनियन सोवियत सोशलिज्म रिपब्लिक. It was the group of the 15 countries having the ideology of communism. Then after Second World War, Eastern European countries that were liberated by Russia, and thus they came in under the control of USSR. Third thing, there was also, because of the economy, some countries also joined USSR because of economy. In Russia, after 1947, it took too much growth. Its economy was increasing too much. Even in space, it also launched its rocket. And because of this, the people, all the countries were looking that Russia was getting progress, and because of this progress, because of science and technology, because of trade, then because of the economy, that was having growth too much. Because of these things, the many countries came in under USSR group, and thus Russia became Soviet system. Clear concept? Now, what was the things? In 1985, how it integrated, how Russia integrated, how USSR disintegrated. First we studied how it integrated, now how it disintegrated. पहले हमने पढ़ा ये कैसे इसका ये संगठन हुआ, अब हम पढ़ रहे हैं इसका कैसे विघटन हुआ, कैसे इसके टुकड़े हो गए. तो मिखाइल गोर्बाचोव
who became the leader of USSR, who became the president of USSR, or we can say the general secretary of रिपब्लिक पार्टी इन रसिया। रिपब्लिक पार्टी का रसिया के अंदर मिखाइल गोर्बाचोव क्या बना, जनरल सेक्रेटरी बना। कब बना? इन 1985। In 1985, Mikhail Gorbachev, who became the General Secretary of Republic Party, and it introduced a new theory of development, a new economic theory of development, that was perestroika, that was restructure, and the second was glasnost. It was openness. This new ideology it adopted Mikhail Gorbachev, and he appointed General Secretary Mikhail Gorbachev. He also appointed Mr. Yeltsin. Yeltsin was also appointed for the reformation. Yeltsin was also appointed as the reformation. सुधार के लिए, अपनी नीति में इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसने क्या किया, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर येल्सिन को बना दिया, लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बना दिया। रिपब्लिक यूएसएसआर का लीडर तो जनरल सेक्रेटरी कौन बना? मिखाइल गोर्बाचोव बना। पूरे 15 देशों का ये ग्रुप था, उसका राजा बन गया, जनरल सेक्रेटरी बन गया मिखाइल गोर्बाचोव। और अपने रसिया के अंदर इसने अपना जो देश था, अपना जो ब्लॉक था, अपना जो एरिया था, 15 देशों का जो ग्रुप था, उसमें से एक ग्रुप रसिया था, उसका लीडर जो है कम्युनिस्ट पार्टी का येल्सिन को बना दिया गया। नाउ इट हैपेंड, दे स्टार्टेड दिस आइडियोलिज्म, पेट्रोस्ट्रोइका एंड द ग्लासnost. पेट्रोस्ट्रोइका मीन्स द रिस्ट्रक्चर एंड ग्लासnost इट मीन्स ओपननेस। ये दो विचारधारा जब इन्होंने लागू की तो पीपल स्टार्टेड ओपोज देम, लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। द पीपल डिडंट एडोप्ट एज वेल एज अमेरिका, यूएसए वाज डेवलपिंग टू मच। अमेरिका तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा था एंड यूएसएसआर इकोनॉमी वाज टू मच लेगिंग बिहाइंड। अब अमेरिका की यूएसएस की जो इकोनॉमी थी काफ़ी पीछे रह गई थी, और जबकि यूएसए बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था। इसके कारण लोगों के मन में, देशों के मन में, ये 15 देश जो इसमें शामिल थे, उन देशों के जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोच रहे थे कि व्हाट शुड बी डन नाउ, दे मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस, एंड दे डिडंट लाइक द पेरोस्ट्रोइका एज वेल एज द ग्लासnost, द थ्योरी ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव, एंड इवन दे डिडंट लाइक द कम्युनिस्ट। नाउ दे वांटेड टू लिबर्टी, they wanted to the capitalism. Up now in USA there was a theory of the capitalism, and now these new reformation, because of this new reformation they didn't like this thing, and they now wanted to adopt the capitalism theory that was flourishing in USA. अब अमेरिका के अंदर, जो यूएसए के अंदर जो कैपिटलिज्म की जो थ्योरी थी, जो कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, वो तेज़ी से फ्लोरिश हो रही थी, उस एज वेल एज लिबरलिज्म। ये दो थ्योरी जो डेवलप हो रही थी अमेरिका के अंदर, इस प्रकार यूएसएसआर से ये लोग भागना चाह रहे थे किसी तरीके से, और अब यूएसए की थ्योरी को अपनाना चाह रहे थे। ये एक कारण बना, ये पॉलिसीज़ का कारण बना। एंड 1991 के अंदर, 1991 a troop started lead in that, and communist party was also and communist party encouraged the troop. एक सेना की आर्मी को 1991 में क्या किया गया, इस कम्युनिस्ट विचारधारा की उस आर्मी को बढ़ावा दिया गया, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के द्वारा या कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक सेना को बढ़ावा दिया गया कि आप लीडरशिप कीजिए और अपने आप को इस पर अधिग्रहण करने का अपना वर्चस्व को बनाए रखो। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। द पीपल डिडंट लाइक दिस थिंग एंड वांट द ओल्ड कम्युनिस्ट सिस्टम डेवलस्टिंग। दे पुराने सिस्टम को गिराना चाहते थे, और इस प्रकार रसिया
Russia, Ukraine, and the third country that was Belarus. ये 3 countries, those were also in USSR group. These 3 countries in Russia, Yeltsin was leading. Yeltsin was the leader, and in Ukraine and Belarus there were other 2 leaders. They all 3 declared themselves as the free from USSR group, and thus in 1991 the USSR group disintegrated and many other countries separated from USSR group. And now Russia, now we come to know what is Russia today. Ukraine became also independent by separating from USSR. Belarus also became Herzegovina, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan. These countries also separated from USSR group, and now we can say this was the disintegration of USSR. कैसे यूएसए का टुकड़े हुए हमने देखे. अब हम पढ़ते हैं, we will study now the effect, the reason for Soviet Union disintegrated, how it collapsed, how this USSR collapsed. ये कैसे हुआ, ढेर क्या हो गया, what was the reason क्या था, यूएसएसआर के टुकड़े होने के रीज़न क्या थे. द रीजन्स ऑफ कोलैप्स का मतलब ढेर होना, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रसिया. इसका कैसे ये ढेर हुआ, कैसे टुकड़ा हुआ, इसका कारण था, फर्स्ट रीज़न था इंटरनल weakness. The people also got dissatisfied, as well as many leaders, many businessmen were not satisfied by the communist theory, by the socialist theory of USSR. USSR की जो समाजवादी सोशलिस्ट थ्योरी थी या कम्युनिज्म जो था उसके में विश्वास नहीं करते थे, और इंटरनल जो है वीकनेस, कमजोरी आ गई थी. इसलिए पहला रीज़न ये था. फेलियर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम. इकोनॉमी, रसिया की, यूएसएसआर की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी जो थी वो पूर्ण रूप से फेल हो गई थी. दे वर नॉट एबल टू रूल completely, as well as the economy was day by day going down. Because of this it was completely failed, and this also became the reason of collapse of USSR. Third thing, corruption. There was too much corruption because of the, in USSR there was also the authoritarian feeling. The people, those who were ruling in the country, those who were in power like the political leader, they were having the monopoly of them. जो लोग पार्टी में सत्ता में थे, जो लोग लीडर थे, जो राजनीतिक लीडर थे, वो लोग अपनी मनमानी करते थे कि हमने बोल दिया जो होगा, और किसी की बात को, जनता की बात को सुनते नहीं थे, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते थे, अपनी मनमानी करते थे. दिस ऑथोरिटेरियन फीलिंग आल्सो became the reason of collapsing of USSR. Corruption, centralization of USSR. USSR में centralization था. It means that the authority that were completely having all the policies in their own hands. They didn't listen to anybody, they didn't follow anybody. वह किसी की सलाह नहीं मानते थे, किसी को फॉलो नहीं करते थे, और अपनी जो नीति थी उसको लागू कर दिया, उसको एक तरीके से वो लागू कर देते थे. 15 कंट्रीज़ के लोग इसमें शामिल थे. 15 कंट्रीज़ का ये ग्रुप था, लेकिन इन्होंने जो कह दिया हमने कर दिया. जो मेन कम्युनिस्ट रसिया के जो देश के जो लीडर था, जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचोव बने. मिखाइल गोर्बाचोव ने जो कर दिया
वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो बाकी लोगों की कहानी, बाकी लोगों की समस्या को सुना नहीं जाता था, बाकी देशों की समस्या को, बाकी ग्रुप के लोगों की बात को सुना नहीं जाता था। ये आल्सो दिस सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूएसएसआर आल्सो बिकेम द रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, वी स्टडी अबाउट द पॉवर्टी। पीपल वर गोइंग बिकॉज ऑफ द इक्वलिटी सिस्टम, द पुअर वर बिकमिंग मोर पुअर एंड द रिच वर बिकमिंग मोर रिच। धनवान और धनी हो रहे थे और गरीब हो रहे थे इस विचारधारा के कारण, जिसका परिणाम ये हुआ कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई, अमीर और गरीबों की खाई बढ़ गई। और आपने पढ़ा होगा एक चीज़ और, अब मज़दूर और गरीब के बीच में, मज़दूरों के बीच में और मालिकों के बीच में दो ग्रुप बन गए, मालिक और मज़दूर। इनमें बीच में हमेशा हड़तालें वगैरह होने लग गई और लड़ाई होने लग गई, रिवोल्ट होने लग गई मालिक और, तो ये एक कारण और बना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सेक्शन दैट वाज नॉट हैप्पी विद द आइडियोलॉजी ऑफ द मिखाइल गोर्बाचोव। एक जो बड़ा वर्ग था वो मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों से खुश नहीं था। बिजनेसमैन वर नॉट हैप्पी, फीलिंग ऑफ हेट्रेड ऑफ बिजनेसमैन ट्रेडमैन जो थे वो इसको नफरत करने लग गए, गरीब लोग नफरत करने लग गए। बिकॉज ऑफ दिस द यूएसएसआर आल्सो बिकेम डिसइंटीग्रेटेड। अब हम पढ़ेंगे क्लियर कंसेप्ट के क्या कारण था रसिया के टुकड़े होने के क्या कारण थे। कम्युनिज्म विचारधारा, इंटरनल वीकनेस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंप्लीटली फेल्ड, ऑथोरिटेरियन फीलिंग, पॉवर्टी, फीलिंग ऑफ हेट्रेड ऑफ द बिजनेसमैन, करप्शन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द न्यू थ्योरी, न्यू फीलिंग arises, capitalism. All the countries they wanted to adopt the new, they wanted to leave the socialism. सोशलिज्म को छोड़ना चाहते थे, कम्युनिज्म को छोड़ना चाहते थे, एंड दे वांट टू अडॉप्ट द कैपिटलिज्म दैट वाज प्रिवेलेंट इन यूएसए। अमेरिका में जो चल रही थी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो थ्योरी चल रही थी, उस थ्योरी को, कैपिटलिज्म को उठाना चाहते थे और इसी कारण से इसका टुकड़ा हो गया। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम परिणाम। उसके अलावा एक और चीज़ पढ़ लेते हैं अपन, राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो गया। कैसे हुआ कि दीज वर 15 कंट्रीज, जो 15 लोग जो थे, 15 देश जो थे, वो आपस में अब उनके अंदर अपने देश को आज़ाद करने की एक फीलिंग पैदा हो गई। दे आल्सो वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम यूएसएसआर, दे वांटेड टू बी सेपरेट फ्रॉम देम एज वेल एज वांटेड टू गेट फ्रीडम एंड वांटेड टू इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे अब वो। इस प्रकार देयर वाज द राइज ऑफ द नेशनलिज्म, दे वांटेड टू डेवलप देयर ओन कंट्री अगेन एंड दस द बिगिनिंग वाज डन बाय रसिया के द्वारा ये बिगिनिंग कर दी गई। एज वेल एज राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड रसिया एंड बाल्टिक रिपब्लिक्स, रसिया एंड बाल्टिक रिपब्लिक दे हैविंग द फीलिंग ऑफ फ्रीडम। रसिया भी अब इन 15 ग्रुप में, येल्सिन जो है वो नहीं चाहता था इस ग्रुप के साथ रहूं, अब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना। इतना बड़ा जो एरिया था उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया था। 15 देशों के अंदर एक व्यक्ति द्वारा राज करना इम्पॉसिबल हो गया था। अब इसलिए डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था। इस कारण क्या हुआ, येल्सिन जो थे, रसिया के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सोचा कि अब हमें यूएसएसआर से अलग होना चाहिए और जितने बाल्टिक रिपब्लिक देश थे वो भी उससे अलग होना चाहते थे। और इस तरीके से ये सारे रीज़न जो थे रसिया के ढेर होने। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम रसिया के इस परिणाम क्या हो रहा जब ये टुकड़े हो गए। इन 1991 में रसिया जो है वो, रसिया यूएसएसआर टुकड़े होकर रसिया अलग देश बन गया और 15 देश स्वतंत्र हो गए। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। क्या रिजल्ट रहा इसका
इसका परिणाम क्या रहा? नंबर 1, मैनी कंट्रीज गॉट फ्रीडम, मैनी कंट्रीज गॉट फ्रीडम। नंबर 1 तो ये परिणाम हुआ, बहुत सारे देश आज़ाद हो गए। दूसरा हमने पढ़ा द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, संसार पूरे 2 भागों में विभक्त था, एंड ऑफ बाइपोलरिटी हो गया, एंड ऑफ बाइपोलरिटी। बाई का मतलब 2, संसार 2 भागों में था, यूएसए यूएसएसआर, यूएसएसआर टूट गया, अब अमेरिका की मोन एंड अमेरिका यूएसए बिकेम सुपर पावर। अब अमेरिका सुपर पावर बन गया अकेला, अब तक 2 पावर थी सुपर पावर, अब अमेरिका अकेला सुपर पावर हो गया और इस प्रकार एंड ऑफ बाइपोलरिटी हो गया। तो इसका और परिणाम क्या हुआ? कोल्ड वार खत्म हो गया, द एंड ऑफ कोल्ड वार। और इस प्रकार अमेरिका और रशिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में जो एक जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, विचारों की, आइडियोलॉजी की लड़ाई, वो खत्म हो गई, द एंड ऑफ कोल्ड वार एरा। युग कह सकते हैं, ये युग था एक बहुत बड़ा, जो 1948 से शुरू हुआ था और 1991 में जाके ख़त्म हुआ, 1941 टू 1991। 1948 में ये कोल्ड वार शुरू हुआ था, क्यूबा संकट से, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से शुरुआत हुई थी इसकी, और जो जाके फिनिश हुआ 1991 में। क्लियर कंसेप्ट। और हम बात करते हैं द एंड ऑफ कोल्ड वार एरा। फिर हम बात करते हैं एंड ऑफ डिस्प्यूट ऑफ सोशलिज्म, द एंड ऑफ डिस्प्यूट्स। जितने भी डिस्प्यूट्स थे, जितने भी मतभेद थे, वो सब खत्म हो गए। ऑफ सोशलिस्ट, सोशलिज्म के बारे में, सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी आपस में मतभेद थे वो सब खत्म हो गए, और हम कह सकते हैं ये सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। और आइडियोलॉजी की लड़ाई जो थी, या सोशलिस्ट पार्टीज, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये तीनों वाद खत्म हो गए। समाजवाद, पूंजीवाद और ये कम्युनिज्म, मार्क्सवाद जो था, ये खत्म हो गया। इस तरीके से ये हम कह सकते हैं ये भी परिणाम रहा। और पॉलिटिक्स चेंज हो गई, चेंज इन पॉलिटिक्स, चेंज इन पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स के अंदर एक नया युग आ गया, पॉलिटिक्स चेंज हो गई। जो पहले पॉलिटिक्स पहले कम्युनिज्म बेस पर थी, वो अब चेंज होकर क्या हो गई, अब रिलेशन बेस पर आ गई। अब तक जो थी वो ऑथोरिटेरियन फीलिंग के आधार पर थी। चेंज इन पॉलिटिक्स, ऑथोरिटेरियन टू रिलेशन बेस पर आ गई। पहले लोग अपनी मनमानी करते थे, अब लोगों से राय लेकर एक दूसरे रिलेशन बनाकर, इस प्रकार पॉलिटिक्स के अंदर चेंजिंग आ गई। और बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, हमने पहले पढ़ा। इस तरीके से ये परिणाम रहा किसका, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का। और एक चीज़ और है, शॉक थेरापी। उसके अलावा आया शॉक थेरापी। शॉक थेरापी क्या थी? ये शॉक थेरापी यही थी कि ये जो विचारधारा थी, ये ऑथोरिटेरियन जो फीलिंग थी, अपने आप को मैं, हम करेंगे जो होगा, ये ऑथोरिटेरियन फीलिंग जो थी वो रिलेशन बेस पर आ गई, या यूँ कहते हैं इसके टुकड़े हो गए। और सेंट्रल एशिया के देश और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थे, वो सोशलिज्म जो सिस्टम अपनाया हुआ था, जो ऑथोरिटेरियन फीलिंग अपनाई हुई थी, जो 15 देश जो ग्रुप थे इसमें शामिल, इनकी जो ये फीलिंग थी वो चेंज होकर उनकी जस्ट डेमोक्रेसी में आ गई। शॉक थेरापी में क्या हो गया, ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थ्योरी चेंज इनटू कैपिटलिज्म। अमेरिका की जो नीति थी कैपिटलिज्म, उसके अंदर परिवर्तित हो गई, ये विचार चेंज हो गया। यही शॉक थेरापी थी। जो ऑथोरिटेरियन फीलिंग, समाजवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा थी, ये सिस्टम खत्म होकर क्या हुआ, ये किस में आ गए, कैपिटलिज्म आ गए। और ये किसके कारण हुआ, ये आया वर्ल्ड बैंक के कारण, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक ने की थी फीलिंग इनकी चेंज। वर्ल्ड बैंक एंड
IMF, वर्ल्ड बैंक एंड IMF के द्वारा ये फीलिंग चेंज कर दी गई और इस तरीके से क्या हुआ, शॉक थेरापी हो गई। ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये था पूरा द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। कैसे हमने पढ़ा कि रसिया के टुकड़े हो गए, एंड का मतलब फिनिश, और बाइपोलरिटी का मतलब दो ग्रुप सिस्टम खत्म हो गया, अब वापस पूरा दुनिया में एक ग्रुप हो गया। वो था 1991 में। अब वापस अमेरिका सुपर पावर बन गया और रसिया की जो, रसिया और अमेरिका इससे पहले सुपर पावर थे, वो अब रसिया टूट गया, रसिया के टुकड़े हो गए, बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए और इस तरीके से रसिया का सुपर पावर ख़त्म हो गया। अब तक दुनिया दो खेमों में बंटी हुई थी, अब केवल एक खेमा हो गया, एक टेंट हो गया, क्योंकि देव रसिया USA बिकेम सुपर पावर। और इस तरीके से हम कह सकते हैं द एंड ऑफ बाइपोलरिटी सिस्टम। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक्स अ लॉट।